I'm standing here like a John the Baptist. मैं यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान खड़ा हूँ। One who is coming after me is greater than me. मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे बढ़कर है। We are going to expect a great message from Pastor Devendra, right? हम बड़े संदेश की उम्मीद रख रहे हैं पास्टर देवेंद्र से। So Pastor Carl told me to share something from the Word of God and as well as from the Vashi Church. वाशी चर्च से और परमेश्वर के वचन से पास्टर काल ने मुझे कुछ बांटने के लिए कहा। In the like today we were sharing in the devotion. और आज हम डिवोशन के सुबह समय में हम लोग कुछ बात रहे थे। In Matthew chapter 28 verse 16 and 17. मत्ती का 28वां 16 और 17। The verse says, then the 11 disciples went away into Galilee. 16 और 17 पढ़ सकते हैं आप हिंदी में। To the mountain which Jesus had appointed for them. In verse 17, when they saw him, they worshipped him, but some doubted. These are the disciples who spent time with Jesus Christ 3 years. ये वो शिष्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ 3 साल का समय व्यतीत किया। And they were like so close with Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के साथ इतने नज़दीक में थे। And maybe even you can ask these guys, ask these disciples. और शायद से आप इन शिष्यों को पूछ सकते हो। Peter, what was the response of Christ when he faced the storm? कि जब वहाँ यीशु का जो प्रत्युत्तर होगा वो क्या था जब उसने पत्थर का सामना किया, जब सर पत्थर मारे गए वो। Maybe you can ask John. आप यूहन्ना से पूछ सकते हो। John, you are the only one who stood before the cross. How was Christ? तुम ही अकेले थे जो क्रूस के सामने थे। कैसा था मसीह उस वक्त? And they spent like an enormous amount of time with Christ. उन्होंने मसीह के साथ बहुत सारा समय व्यतीत किया। But here it says. लेकिन यहाँ पर ये कहता है। After the resurrection of Christ. मसीह के पुनरुत्थान के बाद। Who spent 40 days with his disciples. उसने 40 दिन अपने शिष्यों के साथ समय बिताया। They doubted. और उन्होंने संदेह किया। I think this is an amazing picture about our life. ये हमारे जीवन की भी एक तस्वीर है। God is not surprised. हमारा परमेश्वर सरप्राइज नहीं होता। But God knows our frame. Psalm 103. वहाँ भजन संहिता, वहाँ हमारी बातों को जानता है। भजन संहिता 103। He knows my weaknesses. He knows my frame. वहाँ मुझे मेरी कमजोरियों को जानता है। And but the amazing thing, Christ comes and helps us. और अद्भुत बात यह है कि मसीह उसमें आता है और मेरी मदद करता है। And in Acts chapter 1 verse 4 you can see that Christ is saying to the disciples, do not leave Jerusalem. प्रेरितों के 1:4 में वो कहता है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। यीशु, Don't leave Jerusalem. यरूशलेम को मत छोड़ना। But wait. लेकिन इंतजार करो। Wait for that promise. उस वादे के लिए इंतजार करो। Wait for that comforter, Holy Spirit. उस सहायक के लिए इंतजार करो, उस पवित्र आत्मा के लिए। Like Jerusalem is not a safe place. यरूशलेम एक तरह से सेफ जगह नहीं है। Like maybe many of the disciples want to leave from Jerusalem. बहुत सारे शिष्य शायद से उस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं। Luke 24 the 2 disciples left Jerusalem and went to Emmaus road. लूका के 24वें अध्याय में 2 शिष्य छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। And because the place where Christ was crucified. वो जगह थी जहाँ पर मसीह को क्रूसित किया गया था। Maybe these disciples will meet some of the soldiers who crucified Christ. शायद से ये शिष्य उन लोगों को मिल सकते हैं जिन्होंने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। But Christ said, wait here. लेकिन मसीह कहता है कि इस जगह पर इंतजार करो। That is amazing. Stay here. और ये अद्भुत है कि इस जगह पर रुके रहो तुम। During our chapel meeting, Pastor Devendra was saying about don't quit, stay. चैपल के समय में पास्टर देवेंद्र बता रहे थे like continue, वो लगातार। like many times these things comes in our life, discouragement, disappointments. बहुत बार हमारे जीवन में निराशापन, मायूसी आ जाती है। But Christ says wait here. लेकिन मसीह कहता है इंतजार करो। And then the promise giver coming. और उसके बाद वादा आता है। Like what is the meaning of waiting? इंतजार का मतलब क्या होता है? Waiting meaning you are like expecting. प्रतीक्षा, इंतजार करने का मतलब ये होता है कि तुम उम्मीद रख रहे हो। You are waiting for the train. आप ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हो। That means like you are preparing. कि इसका मतलब ये कि आप तैयार हो रहे हो। Like you are waiting for the bus. आप बस के लिए इंतजार कर रहे हो। Don't stand in the wrong bus stop. आप रॉन्ग जगह पर रॉन्ग बस स्टॉप पे खड़े मत रहो। Like Christ says, I am coming. मसीह कहता है कि मैं आ रहा हूँ। The promise that the Holy Spirit is there. वो वादा है, पवित्र आत्मा है। Like this is amazing. This is a miracle. ये चमत्कार है, ये अद्भुत है। Like these disciples are there in that room. 12 disciples plus 120 total 120 people.
120 लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, सारे के सारे शिष्य, all different personality. सारे अलग अलग व्यक्तित्व के हैं। Nathaniel is looking at Peter and like in a different नथानिएल way. पतरस की ओर अलग नजर से देख रहा है। Maybe Mary is telling like I am the mother of Jesus. I need a मरियम कह रही है कि एक तरह से कह रही है कि I need a good place. कि मुझे अच्छी जगह चाहिए, Everything can be in a like a personalities in a different way. कि सभी अलग अलग व्यक्तित्व अलग तरीकों से उसमें One रहे हैं। spark is enough to explode that room. और एक छोटी सी चिंगारी बस काफी है उस पूरे रूम को भरने के लिए। But what happened? Amazing. लेकिन क्या होता है, अद्भुत है, The Holy Spirit came पवित्र आत्मा आती है and the Bible says they were one mind. और बाइबल कहती है कि उनका सबका एक मन And हो it is गया, a work of God. और वो परमेश्वर का कार्य है, Right? This is a work of God. और ये परमेश्वर का काम है। Church is a work of God. कलीसिया परमेश्वर का काम है, Like the Bible school is a work of God. बाइबल स्कूल परमेश्वर का काम है, And this is going on. और ये आगे बढ़ रहा है। So that's what happening in Vashi as और well as वाशी में many यहाँ parts of पर this भी country. और इस देश के अलग अलग भागों में भी वही काम हो रहा And we है। are completed 4 years almost here in Vashi. और वाशी में हम लोग ने 4 साल पूरे कर दिए हैं। So we are, by the grace of God, God is adding people. और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर लोगों को जोड़ रहा है। Like Noah's ark, the animals are coming, नोहा के आर्क में जैसे, नोहा के जहाज में जैसे लोग आते जा रहे हैं, not for sacrifice. बलिदान के लिए नहीं, It's coming to that spiritual sacrifice. वो आत्मिक बलिदान की ओर आ रहे हैं। And we started the Bible college last week, पिछले हफ्ते हमने बाइबल कॉलेज स्टार्ट किया and it's amazing things happening. और बहुत वहाँ पर अद्भुत कार्य हो रहे And हैं। God is bringing new people परमेश्वर नए लोगों को ला रहा है and raising up some men. और लोगों को बढ़ा रहा है। And eventually we took some 2 trips to Delhi और हमने 2 ट्रिप लिए दिल्ली की ओर, and praying. We are और प्रार्थना considering, कर रहे हैं और सोच रहे हैं, and you can also pray, और आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। and also praying even beyond India, Pakistan. और प्रार्थना कर रहे हैं भारत के बाहर के देशों के लिए भी, places. पाकिस्तान और बाकी जगह, Different places. बाकी दूसरे अलग अलग जगह पर। But like God, we are expecting God. और हम परमेश्वर से उम्मीद रख रहे हैं। Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Isaiah जो 40:31. यशाया 40:31 कि जो यहोवा की बात जोड़ते हैं वे ईगल के वो गरुड़ के समान उड़ेंगे, Yeah, okay. उकाब के समान उड़ेंगे। So like we are expecting. Thank you for your prayer धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए and thank you for your love and और आपके everything. प्रेम के लिए और आपकी बाकी And चीज़ों के please लिए। keep our work in prayer. हमारे काम को आप अपने प्रार्थना में याद Great we कीजिए। work under Pastor Devendra. ये बहुत ही अच्छा है कि हम उनके पास्टर देवेंद्र के अंडर काम He's कर an रहे हैं। awesome leader. वो बहुत ही अद्भुत लीडर हैं। And also thank you Pastor Carl. और पास्टर काल का भी धन्यवाद देते हैं। Thank you. Okay. I wanted to answer him, but I don't have an appropriate answer. मैं उनको उत्तर देना चाहता था लेकिन मेरे पास सही उत्तर नहीं है इस वक्त। But anyway, John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद We'll settle the account on the way back. जाते वक्त उस मामले को सुलझा लेंगे। Okay. Open to Matthew chapter 16. मत्ती का 16वां अध्याय। Father, we pray this evening for your grace, your anointing, your leading in this message. We are empty vessels, but it's your grace that you fill us with your word, with your spirit. For our sake, for the sake of the church, and we humble before you, and we have an expectation from you. So this evening, bless this message. In Jesus' name we pray. Amen. Why can't you translate prayer? Let us settle the account first, then we'll do the message. Who taught you that?
Come on. Okay. Matthew 16, मत्ती का 16 verse 13. 13वां वचन। When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked the disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? And they said, "Some say that you are John the Baptist, और उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। He said unto them, उसने उनसे कहा, "But who say you that I am?" परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? And Simon Peter answered and said, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, "You are the Christ, the Son of the living God." तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus answered and said unto him, यीशु ने उसको उत्तर दिया, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, for flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father which is in heaven." क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। I'm thinking of our concept of God. मैं सोच रहा हूँ हमारे जो विचार है परमेश्वर के लिए, What do we think about God? हम क्या सोचते हैं परमेश्वर के लिए? Like the question which Jesus posed to disciples seemed to be a very simple question. जो प्रश्न यीशु अपने शिष्य से पूछ रहा है, एक तरह से बहुत ही आसान सवाल लग रहा है। If he came in this church and asked that question, अगर हम इस कलीसिया में इस प्रश्न को पूछेंगे, we'll all say, "Oh yeah, we have the answer, right?" हम सब कहेंगे कि हमारे पास उत्तर है। Maybe the disciples also could have the similar, quick answer. शायद से शिष्यों के पास भी बहुत ही जल्दी वाला ऐसा उत्तर हो सकता है। Like having spent some time with Jesus and having been his disciple, उनके शिष्य होकर और उनके साथ यीशु के साथ समय it's बिताकर, no big deal to answer that you are the Son of the living ये कोई God. बड़ी बात नहीं है कि इसका उत्तर देना कि तुम जीते परमेश्वर का Then पुत्र why है। is it that Jesus seems so impressed? लेकिन यहाँ पर इतना यीशु मसीह इतना इम्प्रेस क्यों हुआ है? Right? You came to the church, gave somebody a quiz, who is Jesus? We'll all pass the quiz. अगर चर्च में आए और क्विज देंगे कि कौन यीशु है, तो हम सब पास हो जाएंगे But उसमें। will Jesus say the same thing? क्या लेकिन यीशु यही बात My कहेगा? Father has revealed it to you. मेरे पिता ने तुझ पर ये प्रकट किया है। Do I know him? क्या मैं उसे जानता हूँ? We started the Bible college yesterday. कल के दिन में हमने बाइबल कॉलेज की And शुरुआत की। in our Old Testament prophets, we are in the book of Micah. पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में हम मीका के पुस्तक में हैं। And Micah's name means who is like the Lord. मीका का नाम का मतलब यह है कि परमेश्वर जैसा कौन है। Like that's the question Micah is asking. मीका यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन है यहोवा। Micah is addressing the country of Israel. इजराइल के देश को वो पूछ रहा है। And Israel at that point of time was in deep idolatry. और उस समय में इजराइल के लोग मूर्ति पूजा में बहुत गहरे रूप से Isaiah addressed that issue. यशायाह भी यही बात And पूछता Micah है। addressed the issue. मीका भी यही Both प्रश्न of पूछता है। them were in the same generation. वो दोनों एक ही जनरेशन में थे। One man from the upmarket profile from the society. एक बड़े समाज के बड़े सामान से आया है। Isaiah was from a royal family. और यशायाह जो है वो एक शाही And घराने Micah से आया comes है। from a village in Israel, the village which you cannot even trace today in और history. माइका उस गांव से आता है जो गांव का नामो निशान भी नहीं And है। both men are talking on behalf of God. और दोनों ही मनुष्य परमेश्वर के बारे में बात कर Isaiah रहे 40 हैं। verse 18, Isaiah says this. यशायाह 40:18 God says through the mouth of Isaiah, परमेश्वर यशायाह के मुंह के द्वारा कहता है I am God. कि मैं यहोवा हूँ। To whom will you liken me to? तू मुझसे किसके साथ मेरी तुलना करेगा? Who can compare with me? किसके साथ मेरी तुलना करेगा? कौन मेरे समान है? And then Micah says, और माइका कहता है who is like the Lord? कौन है उस परमेश्वर के समान? This is amazing. ये अद्भुत है। Jesus asked the question, who am I? यीशु प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ? Who do they say that I am? वो क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? And then who do you say that I am? और तुम क्या कहते हो कि मैं And कौन हूँ? let's stop talking even about saying for a moment. तो इस समय में बातें नहीं करेंगे Who do you उसके। believe that I am?
तुम क्या विश्वास करते हो कि मैं कौन हूँ? What is our view of God? हमारा विचार क्या है परमेश्वर के बारे में? Like how big is our God? हमारा परमेश्वर कितना बड़ा Or है, how small is our God? या फिर हमारा परमेश्वर कितना And छोटा I think है? humanly speaking, और इंसानी रूप से बात करें, we are all idolaters. हम मूर्ति पूजक हैं। We have, like you remember the Old Testament law? आपको याद है पुराने नियम का Open to व्यवस्था? Deuteronomy chapter 10. व्यवस्था विवरण का 10वां अध्याय। You know, I'm wondering myself which direction this message is going. मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस Just ओर संदेश में किस ओर जाऊँ। Hold on, take the risk with me. God has something to talk to us. परमेश्वर के पास कुछ है हमारे You साथ believe बात that? करने के लिए। क्या विश्वास रखते हो? How many believe that? कितने विश्वास रखते हैं? Yes, God has something to talk to us. परमेश्वर के पास कुछ है बोलने के Doesn't लिए matter, हमारे Pastor Devendra may not be so prepared. पास देवेंद्र तैयार नहीं God हो is सकते, prepared. लेकिन परमेश्वर तैयार है। Hey, who is like the Lord? कौन है उस परमेश्वर के समान? What do I believe about God? मैं परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास Is रखता हूँ? my God too small? क्या मेरा परमेश्वर बहुत छोटा है? Is my God sitting in a box? क्या मेरा परमेश्वर एक बक्से में बैठा है? Box of my definition of Christianity? मेरे मसीह के जीवन की परिभाषा के बॉक्स में? And if it is that way, अगर ऐसा है then be ready. तो तैयार रहो। God may break that box. परमेश्वर उस बक्से को तोड़ सकता है। You cannot put God in a box. आप परमेश्वर को बक्से में नहीं डाल सकते। He told Israel, उसने इज़राइल से कहा, let me go to Deuteronomy 4 first. व्यवस्था विवरण 4 अध्याय पहले Verse 8, 8वीं आयत, verse 7. 7वीं, You shall have none other gods before me. Verse 7. Sorry, Deuteronomy 5 verse 7. 5वां अध्याय और 7वीं आयत। Okay, we can. do मुझे this. छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। You shall not make you any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or on the earth beneath or that is in the waters beneath the earth. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। We know our season is coming in Mumbai. हम जानते हैं कि यहाँ पे एक समय आ रहा है। I have decided this time to do a little bit of a hard preaching regarding idolatry. और इस समय मैंने निश्चय किया है कि मैं थोड़ा मूर्ति पूजा के बारे में थोड़ा कठोर संदेश दूंगा। Like there are things which are problems in the land. कुछ चीज़ें हैं जो इस भूमि में जो समस्याएं हैं। And we are men and women of God. और हम परमेश्वर के मनुष्य हैं। And we have a message. और हमारे पास संदेश है। And that message may seem a little hard sometimes. और ये संदेश कभी कभी कठिन लग सकता है, But people need to be explained why is idolatry wrong. लेकिन लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है It कि मूर्ति hurts पूजा them. गलत किया है, उनको ठेस पहुंचता है It hurts them. उससे ठेस पहुंचता है उन्हें। And then we can bring the gospel. और हम उसके बाद हम सुसमाचार को ला सकते हैं। But in the church, लेकिन कलीसिया में as a Christian, एक मसीही होने के नाते what do I compare God to? मैं परमेश्वर की तुलना किससे करता हूँ? In my life, मेरे जीवन में is my God a God of blessings? क्या मेरा परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है? Why am I a Christian? मैं एक मसीही क्यों Like हूँ? let's answer that question. उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। Why did you believe in Christ? आप मसीह में क्यों विश्वास And रखते there हो? can be many answers. और बहुत सारे उत्तर हो And सकते I हैं। like asking this question. और मैं प्रश्न को पूछना पसंद करता हूँ। He healed me. उसने मुझे चंगाई दी। And I want to know whether he knows the gospel. और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसने सुसमाचार को जाना He है, died on the cross for me. कि वो क्रूस पर मेरे लिए मरा। But is that enough? क्या लेकिन ये काफी है? Is that enough to believe in him? क्या ये काफी है कि मैं उस पर विश्वास कर लूं? He will take me to heaven. वह मुझे स्वर्ग ले जाएगा। Even whether that is enough. क्या ये भी काफी है इतना ही? Is that the sufficient reason to believe in Christ? क्या ये पर्याप्त कारण है उस पर विश्वास करने के लिए? He will bless me. वह मुझे आशीष देगा। He answers my prayers. वह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर He देता है। forgives my sins. वह मेरे पापों को क्षमा देता है। Many answers possible. बहुत सारे उत्तर आएंगे। But why do we believe in Christ? लेकिन हम मसीह में क्यों विश्वास रखते हैं? Because he is really God. क्योंकि वो सचमुच में परमेश्वर है। I don't believe in him because
only because he can take me to heaven. मैं उस पर विश्वास सिर्फ इसीलिए नहीं करता क्योंकि Don't वही केवल मुझे misunderstand स्वर्ग ले जाएगा। मुझे गलत मत समझो, But I believe in him because he is really is who he claims himself to be. लेकिन मैं उस पर विश्वास इसीलिए करता हूँ कि वो जो कहता है कि वो है वो। It was not worth believing it if it was a lie. ये अगर ये झूठ होता तो इस पर विश्वास करना, Even if it meant good for me. भले ये मेरे लिए अच्छा होता तो। It's not worth, like, I don't want to say it in a wrong way. मैं इसे गलत तरीके से नहीं कहना But I चाहता, want to still communicate what I want to लेकिन say. मैं ये फिर भी बताना चाहता हूँ, God is God परमेश्वर है and I can't change him. और मैं उसे नहीं बदल सकता। I can't define him to suit my life. मैं उसे अपने जीवन को सूट करने के लिए उसके परिभाषा नहीं बना सकता। He is too big. वह बहुत बड़ा है। He's not an enlarged, perfected version of man. वह एक बहुत ही मनुष्य में बड़ा सी चीज If है। I come up with God with my mind, अगर मैं अपने मन से परमेश्वर को बनाता हूँ, if I start defining God according to my understanding, अगर मैं अपनी समझ से परमेश्वर की परिभाषा देता हूँ, however perfect I get, कितना भी सिद्ध मुझे मिले, however good I get at that definition, भले ही कितना भी अच्छी परिभाषा मुझे मिल जाए उसकी, it will fall too short. वो बहुत ही छोटा पड़ेगा। God is God. परमेश्वर है, He is who He is. वो है जो वो है। And trust me, you can read your whole Bible. और विश्वास रखो कि आप पूरे बाइबल को We पढ़ सकते must हो। read our Bible हमें to know God, परमेश्वर को जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ने की but you जरूरत है, can master your Bible. लेकिन आप बाइबल में जैसे पूरी अच्छी तरीके से वो कर And सकते हो। when we will enter heaven, और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, we'll be filled with surprises. हम सरप्राइज से भर जाएंगे एक तरफ से। That day we will really know Him. उस दिन हम उसको सचमुच में जान We पाएंगे, will see Him. हम उसे देखेंगे। And I don't know how much, और मैं नहीं जानता but कितना, I'm sure of this. लेकिन मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ। I'll say, oh, I just didn't know Him little. और उसको उतना नहीं जानता। He is God. वो परमेश्वर है। And I wish, और मैं and this is my desire, और ये मेरी इच्छा है that little by little, कि थोड़े से by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह में I'll get to know Him. मैं उसे जान पाऊंगा। Somewhere close to, not the God नजदीक में I think Him to be, वो परमेश्वर नहीं जो मैं सोचता हूँ कि वो है, but the God who He really is. लेकिन वो परमेश्वर जो वो सचमुच में है। You know, A.W. Tozer says this. A.W. टोजर ने ये कहा, The lack of the knowledge of the holy has landed us into the troubles which we are in. पवित्रता का ज्ञान के जो कमी है उसने हमें उस समस्या की भूमि पर लाके रखा है। I would love to win more souls. मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं और प्राणों को जीत सकूं। I would love to disciple more people. मुझे बहुत ही प्रेम होगा अगर मैं और लोगों को शिष्य बना I पाया। would love if the churches grew bigger than what we have been able to bring them मुझे to. बहुत ही खुशी होगी अगर कलीसियां उतना बढ़ जाएं जितने हम चाहते हैं और आगे बढ़ते रहें। And there is a mystery to it, I understand. और मैं समझता हूँ कि उसमें एक रहस्य है। But you know what? I also know this. लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, The souls I cannot win, वो प्राण जिसे मैं नहीं जीत सकता, and the disciples I am not able to make. और जो शिष्य मैं जो नहीं बना पा रहा हूँ, You know what is the limitation? जानते हो उसमें कमी क्या है? My inability to present God the way He is. मेरी क्षमता को जैसे परमेश्वर को प्रदर्शित करना है उसे नहीं करता। I often bring a second hand God to people. मैं कभी-कभी सेकंड हैंड परमेश्वर को लोगों के पास लाता हूँ। It's interesting. यह दिलचस्प है। Right? I have seen Christians talking to people on streets. मैंने उन मसीहों को देखा है जो रास्तों पर In the soul बातें winning. करते हैं, सोल विनिंग में, And they are telling them, और वो कह रहे हैं उनसे, you should not be doing this. आपको ये नहीं करना चाहिए। Bible says this. बाइबल ये कहती है। Where is the cross? क्रूस कहाँ है?
Like, what are you giving them? आप उन्हें क्या दे रहे हो? Okay, you and I are in greater grace. आप और मैं ग्रेटर ग्रेस में हैं। We almost know our gospel message. हम हमारे सुसमाचार के I'm संदेश still को पूरा saying जानते हैं। almost. पूरी तरीके से मतलब I really sometimes I wonder, मैं कभी कभी सोचता हूँ, like, am I presenting the heart of God? क्या मैं परमेश्वर के हृदय को दिखा रहा हूँ? Isn't Christ attractive enough? क्या मसीह है इतना अट्रैक्टिव, आकर्षित नहीं है? Shouldn't he draw people? क्या वो लोगों को खींच नहीं सकता? But why are they not drawn? लेकिन वो क्यों नहीं खींचे जा रहे हैं? Because I need to get to know God more. क्योंकि मुझे परमेश्वर को ज्यादा जानने की जरूरत है। There is a story in the Bible. बाइबल में एक कहानी है, Deuteronomy 10. Let's go there first. व्यवस्था विवरण 10 verse 12. 12वीं आयत। And now Israel, what does Lord your God require of you? अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? Good question. अच्छा प्रश्न है। God, what do you want from my life? परमेश्वर, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो? Right? You're walking with God. आप परमेश्वर के साथ This चलते हो question pops up in our mind. और हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, Like, what do I give to you? मैं आपको क्या देता हूँ? Jesus said, यीशु ने कहा, he who is my disciple, तुम मेरे जो शिष्य हो, he should deny himself, कि वे अपने आप को नकारने चाहिए, take up his cross अपने क्रूस को उठाएं and follow me. और मेरा पीछा करें। But sometimes that sounds to me more like a poetry. लेकिन कभी कभी वो मुझे एक कविता के रूप में दिखने लगता है वो पंक्ति। Lord, if you gave me 5-point agenda, अगर आप मुझे 5 चीजों के that कार्यक्रम would की be बातें much दोगे easier. तो वो ये आसान होगा I मेरे would लिए, do it. मैं कर लूंगा उसे। But this seems indefinite. लेकिन ये जैसे बहुत ही Right? What do I need to give away in my life? मेरे जीवन में मुझे क्या देने की जरूरत है? Right? I mean, I don't know. I mean, am I talking some edifying things? क्या मैं आपको प्रोत्साहन की बातें कह रहा हूँ? But yeah, I mean, I want to be a disciple. लेकिन हाँ, मैं एक शिष्य बनना And I चाहता ask these questions in my heart. और मैं अपने दिलों में ये प्रश्न को पूछता हूँ, Lord, what would it take? परमेश्वर ये क्या लेगा? Am I capable enough? क्या मैं क्षमता से भरा हुआ हूँ? Will I follow you next 25 years of my life? क्या 25 साल आगे तक मैं आपका पीछा करते रहूंगा? Will I be able to deny myself? क्या मैं अपने आप को नकार पाऊंगा? Will I be able to take up my cross? क्या मैं अपने उस क्रूस को उठा पाऊंगा? So here is this question. What does God require of यहाँ you? पर ये प्रश्न है कि यहोवा तुमसे क्या चाहता है? To fear the Lord your God, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, to walk in all his ways, सारे मार्गों पर चले, to love him, उससे प्रेम रखे, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। This is Moses talking. यहाँ पर मूसा बात कर रहा है। Somewhere around these verses, Moses इन also वचनों talks के आजू बाजू मूसा भी बात करता है, his personal story. उसकी व्यक्तिगत कहानी। He is encouraging a new generation of people. वह नए जनरेशन के लोगों को अभी प्रोत्साहन दे रहा He है। is telling them to go all the way with the Lord. वह उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम्हें परमेश्वर के साथ पूरे रास्ते भर चलना And है। in that he tells this story. और इनके बीच में वो कहानी बताता है, God is taking you to the promised land. परमेश्वर तुम्हें वादे के देश में ले जा रहा But है। you know what? लेकिन क्या तुम जानते हो, He has told me that I will die here. उसने मुझसे कहा है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा। This is amazing when you read this. ये अद्भुत है जब आप ये पढ़ते हो। This is Moses. ये मूसा है। I am the servant of the Lord. मैं परमेश्वर का दास हूँ। I have done my part. मैंने मेरा हिस्सा कर लिया है। But God has said to me, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है you will not see the promised land. कि तू वादे के देश को नहीं देखेगा। And Moses is not asking the question और why. मूसा प्रश्न नहीं पूछता है क्यों। Have we ever asked the question why? क्या आपने ये प्रश्न पूछा है क्यों? Why God? क्यों परमेश्वर? I deserve something according to me. मुझे इसके अनुसार मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैं इसके योग्य हूँ।
I have done this in my Christian life. मैंने अपने मसीही जीवन में ये सारी चीजें की हैं। Now I need to have this back from you. और मुझे अब ये इन चीजों की जरूरत है आपसे। But somehow the equations don't work. Christianity is not a religion. लेकिन ये जो बात है वो काम नहीं करती कि मसीह If you had a religion, धर्म there नहीं would है। be equations. अगर आपके पास धर्म है तो वहाँ पर एक तरह से इक्वेशन A plus होगा। B should always turn out to be C. A प्लस बी हमेशा C होना चाहिए हमेशा। But then it doesn't work that way with God. लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा काम नहीं होता। Every time you do something good, God should reward you. हर समय जब आप कुछ अच्छा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। Every time you commit a serious mistake, God should punish you. और हर समय आप कुछ गलत करते हो तो परमेश्वर आपको सजा देगा। That's the equation religion. ये धर्म का जो इक्वेशन है, धर्म But का somehow फॉर्मूला है। this is not the way God works. लेकिन ऐसा नहीं है परमेश्वर जैसे कार्य करता है। God works something like this. परमेश्वर ऐसे कार्य करता है कुछ इन तरीकों से। In Romans 5:20 he says, when sin abounds, grace abounds much more. रोमियो का 5:20 कहता है कि जब पाप बढ़ता है तो वहाँ अनुग्रह भी और But बढ़ता God, है। I don't understand this. मैं इसको नहीं समझ पाता हूँ। In 2 Corinthians 12 it दूसरा says, कुरिन्थियों का 12 कहता है because God gave me revelations, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, He also gave me thorn in the flesh. उसने मुझे कांटा भी दिया मेरे शरीर में। Come on, my equation would say, मेरा जो इक्वेशन है वो ये don't कहेगा give me फॉर्मूला so many revelations. कि मुझे इतने सारे प्रकाशन मत दो। If you had to give me thorn in the flesh also with that, अगर आपको उसके साथ मुझे कांटा भी देना I है तो thought having more revelations would bring me more rewards. मुझे लगा कि ज्यादा प्रकाशन मुझे ज्यादा आशीष And then he देगा। also says, then 3 times I prayed to him. और ये भी कहता है कि 3 बार मैंने उससे प्रार्थना की And he said, और वो कहता है just be happy with my grace. तू मेरे अनुग्रह के साथ बस My खुश हो। words, okay? मेरे शब्दों में। Preachers are allowed to do this. You can read the verse in your Bible. आप उन वचनों को पढ़ Therefore I सकते हैं। glory in my weakness. इसीलिए मैं अपनी कमजोरियों में महिमा पाता हूँ। Because when I am weak, I क्योंकि am strong. जब मैं कमजोर हूँ तब मैं मजबूत हूँ। That also doesn't fit my equation. वो एक तरह से मेरे उस इक्वेशन में ये भी फिट नहीं होता। How can I be strong when I am weak? मैं कैसे मजबूत हो सकता हूँ जब How मैं can कमजोर I हूँ? glory in my weakness? मैं अपनी कमजोरी में कैसे महिमा कर सकता हूँ? Doesn't fit the equation. यहाँ पर फिट नहीं होता ये इक्वेशन। In Genesis 32, उत्पत्ति के 32वें अध्याय में here is Jacob. यहाँ पे याकूब है। I've been preaching for last couple of weeks the subject of brokenness. मैं पिछले हफ्तों में कुछ इस विषय में बात कर रहा हूँ, टूटेपन को। And I even don't like calling it a subject. और मुझे इसको एक विषय भी बोलना अच्छा नहीं लगता। And I very rarely find it written in books. और मैं बुक्स में ये बहुत ही कम पाता हूँ लिखा हुआ। I kind of understand the reason for it. और मैं समझ सकता हूँ इसका कारण क्या हो सकता है। Because a lot of times more you try to explain it, more it eludes you. क्योंकि जितनी बार आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं उतनी बार वो आपको उपयोग करता है। Jacob in Genesis 32, याकूब उत्पत्ति के 32वें अध्याय में he met the angel of the Lord. वह परमेश्वर के दूत से मिलता है। Remember the story? कहानी याद है? Now let's get to the context of the story. कहानी में हम लोग जाते हैं। Jacob is returning after his 14 years of time with Laban. लेबान में 14 साल बिताने के बाद वह वापस आ रहा है। 14 years back he had cheated his brother Esau. 14 साल उसने अपने भाई ईसाऊ को धोखा दिया है। And Esau is a strong man, a hunter. और ईसाऊ एक तरफ से एक शिकार करने वाला मजबूत व्यक्ति The है। tough guy, the strong brother. कठोर भाई है। Jacob is just a schemer, the shrewd guy in the house. और याकूब एक तरफ से केवल चालाकी बुद्धिमान व्यक्ति था He उसमें। managed to turn the tables against Esau. उसने ईसाऊ के खिलाफ कुछ करने He की कोशिश cheated की। him, उसने धोखा दिया, ran away. दूर भागा। God paid him back. परमेश्वर ने उसे फिर उसकी भरपाई दे दी। 14 years, 14 साल, 2 wives, 2 concubines, 2 पत्नियां, 2 उपपत्नियां, 11 children, 11 बच्चे, some sheep, some कुछ camels. भेड़, कुछ ऊंट।
some servants, कुछ दास, and Jacob is returning, और याकूब अब वापस आ रहा and है his mind is troubled और उसका दिमाग हिला हुआ है, because he has to now face Esau. क्योंकि अब उसे अपने भाई ईसाऊ का सामना करना है। How do I deal with this situation? मैं इस परिस्थिति से कैसे सामना He is a करूंगा? believer. वो विश्वासी है, He knows he has a call of God in his life. वह जानता है कि उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट God है, has made some promises, परमेश्वर ने कुछ वादे बन दिए हैं उसे, but he also has a scheme. लेकिन उसके पास भी एक He has learned to be in control of his life. वो उसने सीखा है अपने जीवन को अपने आप से नियंत्रण Like we करना, have learned it. जैसे हमने सीखा है। It's my life. ये मेरा जीवन है। All said and done, behind the religious jargon, एक धार्मिक रहने के after पीछे, saying in Jesus' name, यीशु के amen, नाम में आमीन कहने के बाद we have a scheme. हमारे पास अपना तरीका है। I know how I want my life to work. मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन कैसे काम करना चाहिए। All the secular counseling, पूरी दुनिया भर की जो काउंसलिंग a है, lot of Christian counseling in the name of like secular counseling packaged like a Christian counseling. और सेक्युलर जो बातें दुनिया की जो काउंसलिंग होती है, जो क्रिश्चियन जैसे साउंड You know what it teaches us? जानते हो क्या सिखाता है वो हमें? Let's figure out how to have a good life. चलो देखते हैं कि कैसे अच्छा जीवन बिताना है। But where is a counselor for Job? लेकिन अय्यूब के लिए काउंसलर कहाँ पर था? उसको What will you tell Job? आप अय्यूब से क्या कहोगे? Is Job in the plan of God? क्या अय्यूब परमेश्वर की योजना Is में है? his life in his control? क्या उसका जीवन उसके नियंत्रण में है? One of the authors talking about this subject, और एक brokenness. लेखक ने जब इस ब्रोकननेस के बारे में He कह रहे थे, says, टूटेपन के बारे में, उसने Often कहा, it happens that your life slips from your own hands ये अक्सर होता है कि आपका जीवन आपके हाथों से फिसल and जाता है shatters near your own feet, और आपके कदमों पर ही जाकर टूट जाता and है, all you get to see is the pieces. और सारी चीजें जो आप देख पाते हो वो केवल टुकड़े होते हैं, And you have to learn to come to terms with it. और आपको सीखना पड़ता है उसके सामने आकर उससे। But we like to be in control. लेकिन हमें अच्छा लगता है हम जब नियंत्रण में And रखते हैं, Jacob liked to be in control. और याकूब को अपने जीवन को कंट्रोल में So रखना here पसंद is the करता है। scheme he devises. तो यहाँ पर एक तरीका है जो बनाता Let है वो me खुद ही, send some gifts to Esau. कि मैं चलो कुछ उपहार ईसाऊ को भेजता हूँ। So here is the sequence of gifts which Jacob sends. और यहाँ पर उसकी First उपहार in दिया verse है। 3 in chapter 32, he sends 32 के तीसरे his वचन में servants, अपने दासों को भेजता है, messengers, go संदेशवाहक and को। talk to Esau. ईसाऊ के साथ जाके Be बातचीत करो, friendly to him. उसके साथ दोस्ताना Maybe व्यवहार that रखना। works. शायद से वो काम कर जाएगा। Then comes the next one in verse 13. और 13वें वचन में फिर अगली बात आती है, 200 she goats, 200 भेड़ बकरियां, 20 he goats. You'll have to read the verse. Verse 14. 200 बकरियां और 20 बकरे। I have been a translator. I can have fun with him. All, give it back. Jacob. Okay, 200 eves 200 बकरियां, 20 बकरे and 20 rams. और 20 मेढ़े। So all sorts of animals. तो यहाँ पर सारे प्राणी हैं। And then he in verse 16 और 16वें आयत में he says, go a little distance ahead from me. कि यहाँ से तुम थोड़ा आगे चले जाओ। Then in verse 18, और 18वें वचन में कहता है, verse 19 actually, 19वें आयत में, first group goes and then the second group goes. पहला ग्रुप जाता है, फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप And जाता then है, the third group goes. फिर तीसरा ग्रुप जाता And है। then go to chapter 33, और 33 में जाएं अध्याय में, verse 2. दूसरा वचन, 33वें का दूसरा Now वचन। he sends his handmaids and their children first. और आगे लड़कों समेत दासियों को और उनके पीछे लड़कों समेत Then he लियाओं को sends भेजता है। Leah and her children next. और फिर लिया और उसके सब बच्चों को आगे And भेजता है। then come Rachel and her son. और उसके बाद रेचल और उसके बेटे को भेजता है। Do you उनके recognize बच्चों को। what's going on? आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? Jacob says, याकूब कहता है, I have to get this in my hand. कि मुझे ये अपने हाथ में कर लेना है। And I know there is a price to give. और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एक कीमत चुकानी है। But let me give the cheapest thing first. लेकिन पहले मैं जो सबसे सस्ती चीजें हैं उनको देता हूँ मैं।
And the most precious one, और जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है the last. वो सबसे अंतिम में भेजूंगा मैं। Like bring it to our relationship with God. मैं इसे अपने परमेश्वर के रिश्ते के बारे में लाना चाहता हूँ। God, I can give you this. परमेश्वर मैं आपको ये दे सकता My हूँ, Sunday morning, संडे मॉर्निंग दे सकता हूँ, right? My hours of the morning, सुबह के मेरे घंटे में दे सकता हूँ, maybe my tithe, मेरा दशमांश, and then the faith missions also. और फेथ मिशंस भी दे सकता हूँ शायद। It's okay. ठीक है ये। But he says, close that book. उस पुस्तक को बंद कर दो Let's talk. और चलो बातें करते हैं। In Genesis 22, उत्पत्ति के 22 में what does Abraham is asked to bring? अब्राहम को क्या लाने के लिए कहा गया था? No negotiations. कोई मेल तेल What do you तोल मेल give? नहीं होगा। तू जो देगा You give your only son. तू Ishmael? अपने एक अकेले पुत्र को देगा। No. Not Ishmael. इश्माइल को नहीं, Only son. तेरा ही Whom you पुत्र love. जिसे तू प्रेम रखता है, The one which you will hold on to till the end. जिसे तू अपने अंत तक, जीवन के अंत तक चाहेगा। Amazing. Now come to another story. अब दूसरे कहानी में आते हैं। 2 Samuel 24. दूसरे शमूएल का 22। Here is 24। David. यहाँ पे दाऊद है 24 में। Towards the end of his life. जीवन के अंतिम दिनों में And you know what happens? जानते हो क्या होता है? He makes a big mistake. वह बड़ी गलती कर लेता है। And you know who prompted him to make the mistake? और जानते हो किसने उसे गलती करने के लिए उकसाया? Satan. शैतान ने। Bible says so. बाइबल But कहती you है। know who was behind Satan? जानते हो शैतान के पीछे कौन था? In prompting him to count the army of Israel. उसको उकसाने के लिए कि तू वो सेनाओं को गिने। Bible says बाइबल कहती है God incited him. परमेश्वर ने शैतान को उकसाया और इजाजत दी। 2 Samuel 24:1. दूसरे शमूएल का 24वां Why, एक। Lord? परमेश्वर क्यों? Your man, तेरा मनुष्य हूँ, the man after your own heart, तेरे हृदय के पीछे चलने वाला मनुष्य, has lived his life. उसने अपना जीवन जी लिया। But you know what happened? लेकिन जानते हो क्या हुआ? What is David thinking? दाऊद क्या सोच रहा है? My son is going to be on the throne. मेरा पुत्र जो है वो सिंहासन पर बैठेगा। Solomon will be on the throne. सुलेमान उस सिंहासन पर I बैठेगा। want to make Solomon's life easy. मैं सुलेमान के जीवन को आसान So बनाना let me चाहता हूँ। count the army. तो इसीलिए मैं सेनाओं को गिनता हूँ। Joab comes to him. योआब उसके पास You आता know है। what Joab says? योआब क्या कहता है? Hey David, दाऊद, don't be foolish. मूर्खता की बात You've मत never कर। been like this. तुम ऐसे कभी नहीं हुए You हो। killed Goliath. तुमने गुलायत We को have मारा। won so many battles with you. इतने सारे युद्ध हमने आपके You साथ जीते never हैं। trusted in your army. तुमने अपनी सेनाओं You में कभी always भरोसा said नहीं it is रखा। God who is going to fight the तुमने हमेशा battle. कहा कि वे परमेश्वर है जो Why हमारे can't लिए you have युद्ध same लड़ेगा। faith for Solomon? यहाँ पर सुलेमान के लिए भी यही विश्वास क्यों नहीं रख And सकते? then और फिर God inflicts Israel. परमेश्वर इजराइल को God वो is करता है। angry at David. परमेश्वर को क्रोधित है दाऊद पर। And God sends a pestilence. और परमेश्वर उस जगह पर बीमारी को भेजता है। Imagine David. कल्पना करो दाऊद, Every time Joab will pass by. जोआब जितनी भी बार उसके पास जाएगा, What is David thinking? दाऊद क्या सोच रहा होगा? This guy knows this pestilence is because of me. ये मनुष्य जानता है कि ये बीमारी मेरी वजह से It's आई है। amazing to be wrong in your life. ये अद्भुत है कि आप अपने जीवन में गलत होते हो कभी। Sometimes it's more dangerous to be right. ये कभी कभी बहुत खतरनाक होता है कि आप सही होते I'm हो। saying some tough things. मैं कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ। If you think you are right, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, it's dangerous. वो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक In है। a real sense, none of us are right. एक तरफ से देखें तो हम में से कोई सही नहीं है। It's the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है We are able to preach this Bible. कि हम इस बाइबल को प्रचार कर सकते It's the हैं। grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह We है are able to disciple people. कि हम लोगों को शिष्य It's बना पा not रहे because हैं। we are living a good Christian life. इसीलिए नहीं कि हम एक अच्छा मसीही जीवन जी रहे हैं। It's the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Is somehow in a mysterious way the nature of God comes forth through these broken vessels. और इन टूटे हुए बर्तनों के एक किसी रहस्य रूप से परमेश्वर का स्वभाव हमारे सामने आता है। So David is here. और दाऊद यहाँ पर है। And it's amazing story of grace. और यहाँ पर अद्भुत कहानी है अनुग्रह की। In the middle of the mistake, और गलतियों के बीच में, in the middle of the chastisement, और इन ताड़ना के बीच में, you know what happens? जानते हो क्या होता है? God says, परमेश्वर कहता है, go to this threshing floor of Aruna. उस जगह पर जा अरुणा के। David, you are making the plan. दाऊद तू योजना बना रहा है। Now let me make a plan.
अब मुझे योजना बनाने दे। This place, इस जगह, right in this place, इसी जगह पर, that's where Solomon will build the temple. इसी जगह पर सुलेमान मंदिर को बनाएगा। Go and make an altar there in that threshing floor. और उस जगह पर जाकर तू उस वेदी को बना। In 2 Samuel 24, दूसरे शमूएल के read 24वें this अध्याय part of the story. इस कहानी को पढ़िए। David goes to Aruna. दाऊद अरुणा में He जाता says, है give me this threshing floor. और वो कहता है कि मुझे इस भूमि को दे दो I want to make an altar. और मुझे यहाँ पर एक And I want वेदी बनानी है to do sacrifices for God. और मैं इस जगह पर परमेश्वर के लिए बलिदान What's the चढ़ाना price? चाहता हूँ। Name the कीमत price. क्या है? कीमत Aruna क्या है says बता। it's free. अरुणा कहता है कि ये No price. मुफ्त है, कोई कीमत नहीं I'm चुकाने। also the believer of the same God. मैं भी उसी परमेश्वर का You know what विश्वासी हूँ। David says? दाऊद जानते हो क्या कहता है? Verse 24. 24वीं आयत। And the king said unto Aruna, राजा ने अरुणा से कहा, no, but I will surely buy it of you at a price. ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। And I will not offer burnt offerings unto God of that which did not cost me anything. मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। And David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. और उसने 50 चांदी के सिक्कों से उसने उस जगह को खरीद लिया। If you read the same story in 1 Chronicles 21, अगर पहले इतिहास में 21वें अध्याय में इसी कहानी को पढ़ते the हो, price mentioned is much bigger than 60 shekels of silver. वहाँ पर जो कीमत है वो इससे ज्यादा है। I'll tell you why. मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। You know why? जानते हो क्यों? David said, I am buying the threshing floor. दाऊद कहता है कि मैं इस जगह को खरीद रहा I हूँ, am buying the oxen. मैं इन बैलों को खरीद रहा I हूँ, am buying the yoke. मैं इन जुए को खरीद रहा हूँ। And Aruna, और अरुणा by the way, I am also buying the land surrounding it. कहता है कि मैं पूरी इस भूमि को And भी I आजू am बाजू के paying the खरीद full लूँ price. और मैं पूरा कीमत चुकाऊंगा। Now I am contrasting these two stories. और मैं इन दोनों कहानियों को जोड़ रहा हूँ। This man, ये मनुष्य he is keeping it. वह उसे रख रहा He's है, keeping the best to himself. वह अच्छे चीजों को अपने पास रख रहा है। This man, ये मनुष्य दूसरा, he's saying 60 shekels. वो कहता है 60 चांदी के सिक्के। How about 500 shekels? वो कहता है 500 चांदी के सिक्के देता हूँ। God is asking me 60 shekels. परमेश्वर मुझे 60 I सिक्कों की want to मांग give कर रहा है, 500 shekels. मैं 500 देना चाहता हूँ उसे। That's amazing. और ये अद्भुत है, That's an understanding of the nature of God. ये परमेश्वर के स्वभाव की समझ है। I know my God. मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। This is amazing. ये अद्भुत है Oh, I am misunderstood. कि मैं गलत समझ रहा हूँ। Yes, Joab is staring at me. हाँ, योआब मेरी ओर ताक रहा है, But I know my God. लेकिन मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। I am able to give a price which natural man cannot. मैं एक जो सामान्य व्यक्ति कीमत नहीं चुका सकता, वो उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार I हूँ। don't understand it. मैं समझ नहीं पाता पूरा, But my Christianity is not defined by the amount of happiness I can accumulate in my life. लेकिन मेरी मसीह जीवन की परिभाषा मैं कितनी खुशियों को जमा कर पाता हूँ उससे नहीं होती है। My Christianity cannot be defined by how much I can hold on to. मेरी मसीह जीवन की परिभाषा इससे नहीं होगी कि मैं कितनी चीज़ों को पा रहा हूँ और कितनी चीज़ों को पाता हूँ। It's a different value system. यहाँ पर अलग बात है, अलग मूल्य है। One last verse. एक अंतिम वचन, Micah chapter 6. मीका का 6वां अध्याय। What does God require of us? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? Verse 8. 8वीं आयत। He has showed you, O man, हे मनुष्य, उसने तुझे दिखाया है what is good and what does the Lord require of you. कि अच्छा क्या है और परमेश्वर की क्या आवश्यकता है तुमसे। But to do justly लेकिन न्याय से करने के लिए and to love mercy और करुणा को प्रेम करने and to walk humbly with your God. और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने के। Remember the conference message by Pastor Schaller? पैस्टर शैलर से कॉन्फ्रेंस का संदेश याद है? Matthew 23:23. मत्ती का 23:23। Jesus talking to Pharisees. फरीसियों से यीशु बात कर रहा And है you have done a lot of things from the law, कि तुमने व्यवस्था से बहुत सारी चीजें कर ली हैं, but की हैं, you have
you have neglected the weightier matters. लेकिन तुमने जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको And what नकारा are है। those three things there in Matthew 23:23? मत्ती के 23:23 में 3 चीजें क्या थी? Judgment, न्याय, mercy, करुणा, faith. विश्वास। These are the three things here. 3 चीजें यहाँ पर हैं ये। How can my life be summarized? मेरे जीवन कैसे एक तरफ से मैं How can the purpose of my life be defined? मैं अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे परिभाषित करूँगा? It's three directional. ये 3 दिशाओं में है। Like if you will review your life, अगर आप अपने जीवन को देखते हो there are three directions. 3 दिशाएं हैं। My relationship with God, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता, my relationship with myself, मेरा रिश्ता अपने खुद के साथ, and my relationship with people around me. और मेरा रिश्ता लोगों के जो आजू बाजू है मेरे। It's always that. वो हमेशा ऐसे ही रहता है। I need to know my God मुझे मेरे परमेश्वर को जानने की जरूरत the है, way He really is. उस तरीके जो जैसा वो है वैसे That's जानने की faith. जरूरत। वो विश्वास है। That's faith, right? वो विश्वास है। And then I और need to फिर love my neighbor. मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम करने की। I need to see people as souls मुझे who are loved by God. मुझे लोगों को उस नज़रिए से देखना है, उनके प्राण जो परमेश्वर उनके प्राण को जो परमेश्वर प्रेम करता Think है, of this. उसके बारे में सोचो। I ask this question to myself a lot. मैं ये प्रश्न को बहुत बार अपने आप से पूछता हूँ। Am I really motivated to preach the gospel? क्या मैं सचमुच में प्रेरित होता हूँ कि मैं सुसमाचार को Or am बांटूं? I winning souls because everybody else is watching? या फिर क्या मैं प्राणों को इसीलिए जीतना चाहता हूँ कि बाकी लोग मेरे ओर देख रहे हैं? Like challenging question. चुनौती वाला प्रश्न है। But these are thermometers of my लेकिन life. ये मेरे जीवन के थर्मामीटर हैं। None of us naturally have that inclination. हमारे पास साधारण रूप से ये सारी बातें वो नहीं है। But that's a test. लेकिन ये एक परीक्षा है। And I want to grow in it. और मैं उसमें बढ़ना चाहता And हूँ। the third one और is, तीसरा जो है, and I guess I'm messing the sequence a little bit. I would have loved to say this one first. मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं पहले कहूँगा To love mercy. कि करुणा से प्रेम That's करना। my relationship to myself. ये मेरा रिश्ता है मेरे खुद से। When I am weak, I am strong. जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब मैं मजबूत होता हूँ। Being a grace-oriented person, अनुग्रह से भरा हुआ इंसान बनना, knowing the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह को जानना, loving the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेम करना। That's something. God delights in His grace. परमेश्वर अपने अनुग्रह में प्रसन्न होता है। Do I delight in His grace? क्या मैं उसके अनुग्रह से प्रसन्न होता हूँ? His grace is stronger than everything else in my life. क्या मेरे जीवन में अनुग्रह से कोई चीज़ मजबूत है? Do I measure my life according to the grace of God? क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन को मापता हूँ? Do I meditate on the grace of God? When you love something, जब आप किसी चीज़ को प्रेम करते हो, it occupies your mind. वह तुम्हारे दिमाग को भर देता है। Not what I do. वो नहीं जो मैं करता हूँ, पर Like it's sweet ये in my soul. वह मेरे प्राण के लिए एक मीठा है। Grace of God. Therefore, परमेश्वर का I अनुग्रह glory इसीलिए मैं महिमा पाता हूँ। in my infirmities. मैं अपनी कमजोरियों में मैं महिमा करता Why? हूँ। क्यों? Because His grace क्योंकि उसका अनुग्रह is sufficient for me. मेरे लिए काफी है। It's tasty. वो बहुत ही It's स्वादिष्ट amazing. है, अद्भुत है। Is the way, is the purpose of my living. ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for this evening. पिता, हमें शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you that you धन्यवाद helped कि आप us meditate on these things, कि हम इन चीज़ों पर वचन करते and we हैं trust you to produce
और हम भरोसा रखते हैं आपसे कि आप पैदा करोगे इन fruit फलों को through this message in our lives. इन संदेश के द्वारा। We commit this evening into your hands. इस शाम के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।